लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक्चुअली मरेंगे भी उसमें। तो ये तो देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन मतलब बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी नहीं निकाल पाए कि एग्जामिनेशन, सो दैट आल्सो दैट कैन वर्क एज अ व्हाट यू से, एक थेरेपी के जैसा भी यूज कर सकते हैं आप इसको। So, Nishan, congratulations on your remarkable achievement in the GATE 2024 Instrumentation Engineering and ECE paper. थैंक यू सो मच सर। Our audience would love to get to know you better. So, could you please share your name and the name of your college and your educational background? Yeah, so hi everyone, my name is Nishant Kumar Robin, and I have completed BTech in Electronics Engineering from IIT BHU. Okay. So I am coming from a very good academic background actually, and this was my third attempt in GATE. So I had appeared for GATE 22, 23, and 24, and Okay. every time I got good ranks. So yeah, we'll discuss about it. Yeah, could you share which paper of GATE you appeared, and could you enlighten us with your rank, GATE score, and marks in GATE 2024? Right. Yeah. So in GATE 2022, I appeared for electronics, 23 also electronics, and I secured good ranks like All India rank 10th and All India rank 14th. So that was in my third year and fourth year. Okay. In 2023. 2022, I got All India rank 10. In ECE. 2023, I got EC paper. In 2023, I got 14th rank in EC paper. And this time, I also appeared in instrumentation. So I got All India rank second, 2. And in electronics, I got AIR 9. And Wow. as far as the marks marks are concerned, in instrumentation, I secured 79.33 marks. And Great. in electronics, the marks was 67.66. Amazing. The clapping should be. So ये बहुत अच्छी रैंक है, सिंगल डिजिट रैंक, और जब बात आती है दो दो पेपर में एक साथ सिंगल डिजिट लाना, इट्स आई कांट एक्सप्रेस माय वर्ड्स इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए. So my next question is that can you please share the similarities between the syllabus of GATE Instrumentation Engineering and Electronics and Communication Engineering papers? Okay. So if you go by the syllabus that is issued by any organizing institute, you will find that 7 to 8 subjects are similar. Even if you are coming from electronics background or electrical background, instrumentation is a common engineering background for all them. But the thing is, 2 points आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि instrumentation is not demanding a conceptual base to solve the questions. आपको अपने कोर सब्जेक्ट में यू विल नीड योर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में यू नीड जनरल एप्टीट्यूड, जहाँ पे यू नीड टू यूज कॉमन सेंस, यू नीड टू यूज द कॉमन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. एंड सेकंड थिंग ऑल्सो मैं जो बोलूंगा, जो यू नीड टू कीप इन माइंड कि इंस्ट्रूमेंटेशन, लेस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर. सो बीइंग सिमिलर टू योर कोर सब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको अच्छे रैंक पे भी शायद उतना अच्छा स्कोर ना मिले. Okay. सो इसलिए आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पे हमेशा फोकस करिए. इंस्ट्रूमेंटेशन कैन बी सपोर्ट. ओके, परफेक्ट. सो और मैं बात करूं अगर जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स की, तो IN पेपर एंड EC पेपर का, बोथ का GA और मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम रहता है क्या, या थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है टॉपिक्स? नहीं, सेम ही रहता है. मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में इफ यू गो बाय द सिलेबस, मैथ्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन में कुछ चैप्टर्स ज्यादा हैं. ओके. लाइक देयर आर न्यूमेरिकल एनालिसिस इज देयर, रिग्रेशंस एंड ऑल दैट. कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, बट वैसे क्वेश्चंस आते भी हैं तो यू कैन स्किप 1 or 2 क्वेश्चंस है अगर आप वैसे प्रिपेयर नहीं किए हैं तब. अदरवाइज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द जनरल स्कोप ऑफ द क्वेश्चंस सेम होता है दोनों में. ओके, EC के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं. वो ब्रांच भी है एक अपने आप में, तो बट आई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है, बट उसके बारे में इतनी बात नहीं होती है. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग द गेट IN पेपर
Are there any job opportunities in PSUs or the private sector after cracking the GATE instrumentation engineering paper? इंस्ट्रूमेंटेशन सैडली और अनफॉर्चुनेटली पीएसयूज में बहुत सीट्स नहीं मिलते हैं कंपेयर टू आपके कोर सब्जेक्ट्स में, जहाँ पे आपको काफी रैंक, मतलब टॉप 100 में आने तक भी आपको पीएसयूज, टॉप 100 200 तक भी पीएसयूज मिलते हैं। बट इन इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा केस नहीं है। मे बी कि आप टॉप 10 में हो तो एक दो जगह मिल जाए। बट या इंस्ट्रूमेंटेशन द बेनिफिट इज कि आपको एमटेक करने के लिए कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जहाँ पे आप एमटेक कर सकते हैं अच्छी जगह से। आईआईसी बैंगलोर से कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर आईआईटीज, टॉप आईआईटीज, और देन उसके बाद से आप अपना करियर को शेप कर सकते हैं। बट कंपेयर टू अदर कोर सब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में इतने पीएसयूज नहीं है, और शायद इसलिए ये इतना एस्पिरेंट्स को फैसिनेट भी नहीं करता है। ओके, सो अभी निशान तुम जॉब में, राइट? सो जॉब में हो, और फिर अभी तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे गेट को एक सीरियस करियर ऑप्शन लेना चाहिए? तुमको गेट के बारे में फर्स्ट टाइम कब ये थॉट आया कि आई शुड अपीयर इन द गेट एग्जाम टू मेक अ करियर? एक्चुअली ये आया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स इन 2021-22, जब हमारा कॉलेज जो था दैट वाज बेसिकली वी आर स्टडिंग फ्रॉम होम। और घर से पढ़ने से क्या था, ऑनलाइन मोड पहली बार आया था। सो जो हमारे स्टडीज थे वो भी इतने रेगुलर नहीं हो पाते थे। सो कॉलेज का जब प्रेशर था वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। उसके बाद से मैं सोचा कि आई एम गेटिंग टाइम, सो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं और क्या क्या एग्जामिनेशन है। उस वक्त मैं देखा कि यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट के ऑप्शन है आपके पास। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, गेट एक ऑप्शन है। आई डिड नॉट गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज क्योंकि उसका प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा वास्ट है कंपेयर टू गेट। राइट, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ता, और कॉलेज के साथ साथ उसको तैयारी करना दैट वुड हैव बीन टफ। राइट। बट गेट मैंने पीवाईक्यूज देखा और मैंने सोचा कि यार दिस इज गुड आल्सो, एंड फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन कोर, I thought that I should appear for GATE and see where I stand in all India basis, because that is always a good checkpoint, right? To get to know where do you stand, आपका concepts कैसे हैं, वो सब के लिए। That's why I appeared in GATE. After that तो GATE में बिना प्रिपरेशन के देते रहा, बाकी 23 और 24 में just revision, और just to keep in touch, just to keep in touch with the core subjects. ज़्यादा हंसी आया इस बात पे कि बिना प्रिपरेशन के मैं गेट देता रहा। मतलब तुम बिना प्रिपरेशन के इतनी अच्छी रैंक ला सकते हो, तो मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि मतलब Actually, किसी की भी प्रिपरेशन हमारे लिए टफ नहीं है। नहीं, एक्चुअली आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप, इट्स नॉट दैट टफ। मैं एक्चुअली बताता हूँ, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि यू कमिंग फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड, बीटेक, सो आपने जे एडवांस क्लियर किया है, सो उसके कंपैरिजन में गेट वुड ऑलवेज सीम इजी। लेकिन ओके, दैट डिबेट हैज आर्गुमेंट, आई completely agree with that, but the thing is it's not that tough also जितना लोग बोलते हैं। तो आई एम अ प्रूफ कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं, देन ईयर आफ्टर ईयर यू कैन जस्ट go ahead with your life in parallel, and you can also take GATE examination. Great. So did you have a thought in your mind before the gate exam, like you would crack the gate like this two times, good rank, double digit, single digit, and two papers, you know? So have you thought about it before the exam? To be frank, नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। आई जस्ट वेंट फॉर रिवीजन इन द लास्ट मंथ, टेस्ट सीरीज से या फिर यूट्यूब से जो भी फॉलो करता था उससे मैं रिवीजन करके ही मैं अपियर किया। सो माय टारगेट फॉर 2023 एंड 24 ऑल्सो ये था कि मैं 65-70 के रेंज में रहूं मार्क्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रैंक। 65 to 70 मार्क्स होने चाहिए। दैट वाई आई वुड बी श्योर कि मेरा कोर कॉन्सेप्ट्स जो है वो अभी भी आई एम इन टच विद देम, और मैं भूला नहीं हूँ सब। Okay. सो मार्क्स का मैं टारगेट कर सकता हूँ कि मार्क्स इस विंडो में होने चाहिए। रैंक इज ओके। जैसे इस बार 67 मार्क्स थे, दैट वाज नॉट अ वेरी गुड मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऑल इंडिया रैंक 9th हो जाएगा। सो या। गुड मार्क्स तो है ही, मतलब
इतना भी नहीं यार, मतलब इतना मार्क्स ले आए वो काफी होता है, काफी होता है, मतलब यार मैं ऑल इंडिया रैंक 9 आकर भी तुम इस बात पे घमंड नहीं कर रहे हो कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ये तुम्हारा एक बड़प्पन है। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। So my next question is, are you planning to prepare for more exams like CAT, UPSC और ESE? ESE का तो तुमने मना कर दिया, बट कैट यूपीएससी का सोचा है? हाँ, टू बी फ्रैंक, कैट का मैंने सोचा था कॉलेज के 4th ईयर में। बट द थिंग इज कि आई गॉट प्लेस्ड एट एनवीडिया। सो एनवीडिया में जब मैं प्लेस्ड हो गया तो उसका ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर मुझे मिल गया। एंड कैट करके फिर आईआईएम में जाना वो उतना मुझे लिपरेटिव नहीं लगा उस समय। एनीवेज, आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपियर नहीं कर सकता नेक्स्ट टाइम, बट अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। कमिंग टू यूपीएससी, हाँ, यूपीएससी का एक थोड़ा सा मेरा है रुझान कि यूपीएससी एक ट्राई करना है। क्योंकि क्लास 12 के बाद से मैंने सारे एग्जाम्स, जैसे जे एडवांस एक टफ एग्जाम था उसको मैंने क्लियर कर लिया। फिर और गेट एग्जामिनेशन को टफ बोलते थे लोग। इफ यू डोंट माइंड, मे आई नो कि कितना रैंक था तुम्हारा जे एडवांस में, अगर जे बता एडवांस सकते हो? में रैंक वाज नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इट वाज 4154, 4154। बहुत अच्छा रैंक होता है वो। कुछ जमानों पहले मैं सो भी यही ट्रिपल ही हुआ करता जी, था, तो हम भी प्रिपरेशन हाँ। करते रैंक आता आया था। सो 4000 बहुत अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ उस बात को। सो ग्रेट, कंटिन्यू प्लीज। या तो अब वही है कि आगे, हाँ, मैं सोच सकता हूँ कि यूपीएससी एक बार, हालांकि जॉब के साथ तो टाइम नहीं मिलेगा, बट बैक ऑफ द माइंड है कि अभी एज है, अभी एज वैसा कुछ हुआ नहीं है, जस्ट अभी लास्ट ईयर मैंने बीटेक कंप्लीट किया है। सो लेट्स सी फ्यूचर में। Yeah. All the best for your future. So let's talk about the GATE INECE paper. IN and ECE paper. If we compare both years' papers, what was the difficulty level of GATE 2023 and 2024 for both the papers? गेट 23 आई डिड नॉट अपेयर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, सो उस पे मैं ऐसा कमेंट नहीं कर सकता कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का है। हालांकि आई वेंट थ्रू द क्वेश्चंस। 22 and 24? आई अपेयर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन दिस फर्स्ट टाइम ओनली, पहले नहीं करता था। किया था हाँ, तुमने? बट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बताता हूँ। इन 22 द पेपर वाज वेरी गुड एक्चुअली। लाइक इट वाज नॉट वेरी टफ, बट इट वाज अ स्टैंडर्ड पेपर जो कि थोड़ा सा लीनिंग टुवर्ड्स टफ था। इन 23 द पेपर वाज इजी, वेरी इजी। और इसलिए मार्क्स भी काफी, मतलब 23 में आई सिक्योर्ड 77 मार्क्स अराउंड, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 14th। सो Wow. आप समझ सकते हैं कि दैट पेपर वाज ऑन द इजियर साइड। दिस टाइम द पेपर वाज नॉट दैट टफ, बट जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है वैसे नहीं थे, तो आपको करने में, उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन द पेपर हैज ऑलवेज बीन अ स्टैंडर्ड लेवल। हर साल मैं देखता हूँ कि जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो Ratio. टेबल होते हैं वो ऑलमोस्ट रेशियो रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एटलीस्ट। सो या वो लेवल मुझे लगता है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। Okay. So which books did you follow for GATE, Instrumentation Engineering and ECE preparation? हाँ, ऐसी कुछ बुक्स जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। सो कुछ बताना चाहोगे उन बुक्स के बारे में? जी, सो बुक्स थे, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो किए हैं, जैसे कि बीपी लाठी की बुक आती थी, हम लोग कॉलेज में जो पढ़ते थे, फॉर सिग्नल सिस्टम्स। एंड एक साइमन हेकिंस की बुक आती थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साइमन कुछ ऐसा ही कुछ नाम था। फिर उसके बाद से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती थी बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आपको कहीं भी कॉलेज में जो रेकमेंड की जाएंगी। फिर स्ट्रीटमैन होती थी फॉर ईडीसी। सो ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि हर कोई आपको बोलेगा, तो वो मैं फॉलो करता था। हालांकि फॉर गेट यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीटली, कि एकदम आप बुक से ही पढ़ें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप कहीं से भी अगर किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। इवन यूट्यूब पे भी जो वीडियोस हैं, दैट दे आर वेरी गुड एक्चुअली। बट फॉर बुक्स आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय बुक्स। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा हूँ, आई रेफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स एंड आई मेक माई ओन नोट्स। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको जो भी मिलेंगे नेट पे, दे आर ऑल वेरी गुड। ग्रेट।
अपन बात करते हैं कि वो बेस्ट टॉपिक कौन से हैं जो कि, देखो तुम्हारी तरह अगर रैंक लाना है किसी को तो उसको तो पढ़ना होगा बहुत ज्यादा। बट अगर कोई क्वालिफाई करना चाहता है सिर्फ पेपर को, उसको रैंक नहीं फोड़ना है, ब्लास्ट नहीं करना है, उसको उसको जस्ट क्वालिफाई करना है, सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे निशांत? वो कौन से टॉपिक्स होंगे जो किसी भी एस्पिरेंट को इजीली क्वालिफाई करवा देंगे, दोनों पेपर की अगर मैं बात करूं? इसमें हाँ, दोनों में एक्चुअली सेम ही है, क्योंकि गेट में यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लेकिन दो सब्जेक्ट जो हैं जिनका वेटेज आपको पता है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड विच इज 15 मार्क्स एंड मैथमेटिक्स विच इज 13 मार्क्स। सो दिस 28 मार्क्स आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे। एंड रिमेनिंग आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बचते हैं, सिग्नल सिस्टम्स बचते हैं और नेटवर्क थ्योरी बचते हैं। दीज आर द इजी सब्जेक्ट्स जो कि यू कैन टारगेट। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पास बचे। सो यू फर्स्ट स्टार्ट विथ जनरल एप्टीट्यूड। वहां आप टारगेट करिए कि एटलीस्ट 15 में से 13 तो आए, 13, 12, 13, बिकॉज वो उतना टफ नहीं है। सिंपल पैटर्न मैचिंग आते हैं और सिंपल इक्वेशंस और वो असर्शन रीजनिंग टाइप आते हैं। सो देयर यू कैन टारगेट 10 to 12 मार्क्स एटलीस्ट। फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑल्सो you should target out of 13, at least you should target 9 or 10 marks, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पता है कि you will be getting these number of questions, these marks, ये आपको पता है, so you can prepare for that. After that you go for network theory where you will, and anyway आप अगर तैयारी कर रहे हैं you need to go through network theory, क्योंकि आपको एनालॉग में भी काम आएगा, ईडीसी में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। These are the basic laws. So नेटवर्क थ्योरी से हमेशा हर ईयर आप देखेंगे कि 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। Then you can go with signal and system, because that is also a basic chapter or basic subject, and digital electronics, which I find easier compared to other core subjects. तो अगर आपका एम सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आप इन पांचों सब्जेक्ट्स को लें। इससे शॉर्ट शॉट आपका कट ऑफ जो होता है 30 से ऊपर तो रेयरली जाता है। सो इफ यू ओनली वांट टू क्वालिफाई, दीज 5 सब्जेक्ट्स आर मोर देन इनफ। ये आपको 35, 36 मार्क्स लाके दे देंगे एंड यू विल बी ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। तो गाइज, एक मंत्रा दे दिया है तुमको निशांत ने क्वालिफाई करने का पेपर को। सो ये टॉपिक्स फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें और आप फॉर श्योर क्वालिफाई कर जाएंगे। निशांत, थोड़ा सा ऑफ जाते हैं अपन टॉपिक से। पढ़ाई 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 इसको लेके सब बात करते रहते हैं, बट तुम्हारे इस पूरे दिन के शेड्यूल में पढ़ाई को छोड़ के क्या तुम योगा, एक्सरसाइज, स्लीप, इस पे भी ध्यान देते थे कि भाई मुझे इतने ही घंटे सोना है तो कुछ होगा, एक्सरसाइज भी करना है, योगा भी करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है? क्योंकि एग्जाम का दिन वैसा ही दिन होता है जैसे युद्ध लड़ने जाया करते थे महाराजा लोग। सो अगर बीमार हो गए तो आपका पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। तो उस दिन के लिए प्रिपरेशन पूरे एक साल से चलती है। तो तुम्हारा योगा, एक्सरसाइज, स्लीप और फूड को लेके क्या कहना है? तुम्हारा क्या बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट 2 टाइम्स जब मैंने अपियर किया था तो आई वाज इन कॉलेज, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। सो कॉलेज में आई कैन नॉट बोस्ट कि हाँ कॉलेज में लाइफस्टाइल वाज वेरी गुड, क्योंकि वो नहीं हो पाता है। मेस का खाना होता है, आपको क्लास उठ के भागना है, जाना है, फिर शाम में दोस्तों के साथ भी निकलना है, लेकिन आपको स्टडीज भी करने हैं। सो फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इट्स ओके, आप उतना प्रेशर ना लें। फॉर स्टडीज आप ठीक है, आप डेली का 2 आवर्स रखें अपने पास, उससे ज़्यादा अगर नहीं निकाल पा रहे हैं कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अगर आप फूड हैबिट्स में थोड़ा गड़बड़ है, आप थोड़ा मतलब कि यू शुड नॉट कंज्यूम नेगेटिव थिंग्स, राइट? बट थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं एंड मेस का खाना चल रहा है, बाहर से कुछ खा लिए, दैट इज ओके फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। जो कॉलेज में नहीं है, दे आर सेटल समवेयर एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। ऑब्वियसली हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड आपको हेल्प करेगा ही करेगा। एंड मैं जैसे, मेरा एग्जामिनेशन है कि मॉर्निंग शेड्यूल में एग्जामिनेशन है अगर, so I try to set that morning routine from the previous 1 month, ओके। कि if I have examination from 9:30 to 12:30 slot, so I try कि 9:30 to 12:30 जो slot है उसको मैं active slot में लेके आऊँ। if my routine was not like that, मैं उसको change करता हूँ। and ऐसा हम लोग सुनते हैं कि it takes 21 days to make or break a routine। या सो वो 21 डेज का मैं यूज करता हूँ। अगर सेकेंड हाफ में पेपर है तो मैं 21 डेज सेकेंड हाफ में नहीं सो के
उस टाइम को मैं एक्टिव कर लेता हूँ। सो गुड। दिस स्मॉल थिंग्स, स्मॉल आपको जो भी चेंजेस हैं वो करने पड़ते हैं, एंड आपको ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट भले ना दिखे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बट आप इन द लॉन्ग रन यू विल फाइंड कि हाँ ऐसा करने से आपका कुछ मार्क्स का तो बेनिफिट होता ही है। बहुत बढ़िया। सो सोशल मीडिया को लेके तुम्हारा क्या कहना है? मतलब प्रिपरेशन के दौरान तुमने क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे थे, या फिर नहीं, फोन कॉल सब दूर, बस अभी पढ़ाई करना जेई एडवांस का तैयारी करते वक्त तो सोशल मीडिया था भी नहीं उतना, बट दैट टाइम आई वाज मोर कॉन्शियस, क्योंकि जेई एडवांस हम लोग का 12th का पहला बड़ा एग्जाम था मेरे लाइफ का। बट गेट एग्जामिनेशन के लिए एनीवेज आई एम नॉट अ वेरी लाइक इनटू दिस सोशल मीडिया थिंग्स। है? तो ओके। मेरे लिए अच्छा बात है कि मैं डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं होता है। बट इवन इफ यू आर, आज के टाइम में यू कैन नॉट जस्ट नेग्लेक्ट द सोशल मीडिया, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल योर इन्फॉर्मेशन, योर एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग। राइट राइट। सो दैट इज ओके। ओनली थिंग इज कि आपको यू नीड टू मॉनिटर कि हाउ मच इज गुड, व्हाट इज गुड, व्हाट यू कंज्यूम, कितना देर रहना है। इफ यू कैन मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स, सोशल मीडिया कैन बी वेरी हेल्पफुल इन रिलीविंग योर स्ट्रेस। आप मीम्स देख सकते हैं, आजकल इतना फेमस हो रहा है सब जगह, एंड मीम्स आर थिंग्स कि आप मीम्स देख रहे हैं एंड इट लाइक विद इन अ सेकंड इट विल cheer you up, या right? So that also that can work as a what you say, एक थेरेपी के जैसा भी यूज कर सकते हैं आप इसको। सो या गुड। मैंने पहला, मतलब निशान, तुम पहले बंदे हो अभी के पूरे इस ईयर हम जो भी इंटरव्यूज ले रहे हैं उसमें जो सोशल मीडिया को थेरेपी तरह यूज करने का बोल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर अपन पॉजिटिवली चीजों को लेते हैं तो वो अपने को हार्म नहीं करती है। राइट, बट इतना टाइम ना दो कि अच्छी से अच्छी चीज भी आपके लिए बुरी हो जाए। सो अपन बात करते हैं तुम्हारे डेली पढ़ाई के टाइम टेबल की, कि तुम्हारा डेली का क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का, और एग्जाम से एक महीने पहले तुमने क्या चेंजेस किए पढ़ाई के अंदर? तो डेली आई विल टॉक अबाउट दिस 22 अटेम्प्ट बेसिकली, क्योंकि वो जो अटेम्प्ट था दैट वाज मोर जेन्युइन अटेम्प्ट, और वहां से जो मैं फॉलो करता था वो स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा, बिकॉज 23 24 आर आफ्टर मैथ्स ऑफ माई 22 प्रिपरेशन ओनली। सो उस टाइम पे आई स्ट्रिक्टली स्टडीड फॉर 4 to 5 hours डेली, क्योंकि उस वक्त मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे फोकस करें फॉर द फर्स्ट 6 to 7 months ऑफ योर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट, और ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस बाय एंड ऑफ नवंबर, और एट मैक्स आप मिड दिसंबर तक जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। उसके बाद से हाउएवर मच यू हैव स्टडीड, आप उस ट्राई करिए कि कमिंग 1.5 months में यू ट्राई टू कंसोलिडेट दैट, क्योंकि 2022 में आई रिमेम्बर आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 10th, एंड एट दैट टाइम आई हैड नॉट स्टडीड कम्युनिकेशन एट ऑल। सो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट इट वाज 14 marks which I did not attempt, वो मैं छोड़ के ही आ गया था, ओके। एंड स्टिल आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 10th, क्योंकि मैंने बाकी जो पढ़ा था उसको अच्छे से कंसोलिडेट कर दिया था, एंड आई वेंट फॉर रिविजन्स ऑफ दोज सिलेबस, दैट सब्जेक्ट। तो आप मिड दिसंबर तक पढ़ें, एंड आफ्टर मिड दिसंबर माय शेड्यूल बिकम्स कि आप हर दिन एक एग्जाम दें। फर्स्ट आई स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स, एंड एज द एग्जाम अप्रोचेस आई मूव टुवर्ड्स मॉक टेस्ट्स। एंड आज के टाइम में एवरी एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट्स वुड हैव टेस्ट सीरीज, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि दे डू नॉट यूज दैट टेस्ट सीरीज। सो ऐसा गलती मत करिए, आप टेस्ट दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट आर द टेस्ट जहाँ पे इवन इफ यू डू वेल, दैट इज अ गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस, बट इफ यू डू नॉट डू वेल यू कैन ऑलवेज करेक्ट द नेक्स्ट डे, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम नहीं है। आपका आज अच्छा नहीं हुआ, यू कैन ऑलवेज डू इट बेटर द नेक्स्ट टाइम। राइट। तो यू शुड ऑलवेज अपियर फॉर मॉक टेस्ट, एंड अभी क्या है कि मेनी प्लेटफॉर्म्स आपको ऑल इंडिया बेसिस पे मॉक टेस्ट कराती हैं, वीकली कराती हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो यू शुड अपियर फॉर दैट ऑल्सो, दे आर फ्री इनिशिएटिव्स, आप जरूर जरूर वहाँ पे अपियर करें। देयर यू विल गेट टू लाइक एक्सपीरियंस द एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट। आपका रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक क्या है, यू कैन नो कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, आपको कहाँ मेहनत करना है। सो आई डू ऑल दैट। टेस्ट सीरीज की बात चल रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि फाइंड माई टेस्ट पे भी हमने यही सोच के कॉम्बो टेस्ट बनाए थे। हमारे एक्सपर्ट थे मुकेश, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव किया था शायद 21 में।
सो वो हमारे एक्सपर्ट थे उस टाइम पे, तो उनके सजेशन से कॉम्बो टेस्ट बनाए थे कि भाई उसमें रैंडम क्वेश्चन अपने डाले कि बच्चों का ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए कि रैंडमली कहीं से भी पूछ लिया, मतलब तो उनका प्रिपरेशन काफी बेटर रहता है। तो टेस्ट सीरीज लेना मस्ट है सभी के लिए। सो निशान की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। रिवीजन प्लेज अ बिग रोल इन द एग्जाम। तो रिवीजन का थोड़ा बात करते हैं। तुमने रिवीजन वर्ड को काफी यूज किया है तुम्हारे इस पूरे सेशन में, तो तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी था रिवीजन का? आज जो पढ़ा है वो कल भूलने वाला सीन रहता है सबके साथ, तो तुमने कैसे फॉलो किया तुम्हारा रिवीजन स्ट्रेटेजी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके। तो मैंने जब 2022 में नोट्स बनाए थे, सो वो नोट्स मेन नोट्स थे वेयर ईच सब्जेक्ट हैड अ डेडिकेटेड नोटबुक। जैसा कि मोस्टली लोग करते हैं, यू गेट अ नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट एंड यू फिल दैट नोटबुक। शुरू से अंत तक आप सिलेबस कंप्लीट किए हैं। रिवीजन पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिवीजन। तो मैं कैसे करता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस मैं अपने नोट्स के थ्रू जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू समराइज ऑल दिस इन मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस। कि फॉर्मूले क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स क्या इंपॉर्टेंट है, बस 2 से 3 पेज में चैप्टर वाइज यू नोट देम डाउन, राइट? एंड आफ्टर दैट you leave 1 or 2 pages after each chapter और मूव टू नेक्स्ट चैप्टर देन। ये 2 पेजेस क्या होते हैं कि आप जब टेस्ट सीरीज देंगे या पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो यू विल फाइंड कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे गलत हो रहे हैं, या फिर आप उनके कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ नए फॉर्मूले हैं जो कि आप नहीं लिखे हैं उसमें। सो दैट टाइम आप वो 2 पेजेस पे उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सो ऐसा करके मैंने अपना नोट्स कॉपी बनाया जो शॉर्ट नोट्स कॉपी है, एंड दैट इज नाउ द लाइक बाइबल फॉर मी। अब 2023 में भी आई जस्ट वेंट थ्रू दैट नोटबुक, 24 आई जस्ट वेंट थ्रू दैट नोटबुक। एंड इवन माय फ्रेंड्स जो कि गेट के लिए अपेयर करते हैं, वो मेरा नोटबुक का बहुत डिमांड है एक्चुअली। हर कोई लेके जाता है, जेरोक्स कराता है। दैट इज लाइक अ बाइबल। वो आप दैट हैज कंप्लीट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स A to Z। ओके। सो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज कि आई सी नाउ डेज कि पीपल गेट रेडीमेड पीडीएफ्स, कि नोट्स के आप पीडीएफ मिल रहे हैं। दे आर गुड ओनली कपल ऑफ वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो वीडियो देखते हैं एंड दे गेट द पीडीएफ। दैट शुड नॉट बी द केस। आप अपना नोट्स अपने हाथ से जब तक लिखेंगे नहीं, यू विल नेवर गेट द फील ऑफ द कॉन्सेप्ट, यू विल नेवर गेट द फील ऑफ द क्वेश्चन। सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग, फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर लर्निंग, शुड ऑलवेज राइट योर नोट्स। अपने हाथ से लिखिए, उसको अपने हाथ से कट करिए, गलत हो रहा है तो उसको काटिए फिर लिखिए। जब अपने हाथ से आप लिखेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड इट इजियर टू रिवाइज लेटर। ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे रहेगा कि एग्जाम के टाइम पे, जब रियल एग्जाम होता है, मॉक टेस्ट में तो हो सकता है घर पे रहते हैं अपन, बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है माइंड पे कि क्या होगा, क्या रिजल्ट रहेगा, तो वहां पे अपन अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बट एग्जाम जब होता है, रियल एग्जाम होता है, और तुमने तो एग्जाम 3 3 बार दिया है और तीनों बार ही अच्छा क्रैक किया है, बट ऐसा सब नहीं कर पाते। सो उस टाइम पे जो फियर होता है एग्जाम हॉल में, वो फियर को कैसे कम करें या अपने आपको कैसे काम रखें? और दूसरा, वो कौन सी स्ट्रेटेजी तुमने अपनाई थी एग्जाम के टाइम पे जो तुम्हें इतना अच्छा स्कोर दिला पाई? कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? राइट राइट। तो ये तो देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन मतलब बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी नहीं निकाल पाए कि एग्जामिनेशन में आप कैसे काम रहेंगे। और सब बोलते हैं कि आई वॉज वेरी काम एंड कंपोज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बट ऐसा होता नहीं है। मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन में आई रिमेन काम, बट एक्चुअली आई फील कि हाँ, एग्जामिनेशन में जब वो आपका क्लॉक जब रिवर्स चल रहा होता है ना, स्क्रीन पे आप बैठते हैं, तो दैट टाइम इज रियली स्ट्रेसफुल। उसको आप कभी कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट हैपेंस विद एवरीवन। जहां पे आपको डरने का जरूरत होता है, व्हेन इट हैपेंस ओनली फॉर यू। व्हेन द ग्राउंड इज लेवल फॉर एवरीवन, जहां हर एस्पिरेंट के मन में ये आना ही है, हर एस्पिरेंट के मन में वो स्ट्रेस रहना ही है, तो उस स्ट्रेस से आपको डरना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सब मर रहे हैं तो मैं भी मर रहा हूँ। लेक हाँ, मतलब ये फीलिंग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली मरेंगे भी उसमें। पॉजिटिव रहना दैट इज अ चाहिए। म्यूचुअल फीलिंग। हाँ, एंड द थिंग इज कि वंस यू प्रिपेयर ना, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो यू सेट अ विंडो ऑफ मार्क्स।
जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि when I take examination without even preparation, I know my window is 65 to 75 marks I will score. And this window is irrespective of the level of questions, irrespective of the stress, और कैसा हो जाएगा उस दिन, क्या होगा. अगर बहुत बुरा होता है I will come down to 65, and बहुत अच्छा होता है I will go to 75 78. In any case, your rank window is also fixed. आपका रैंक विंडो जो होगा it will only suffer from like 10 to 20 marks अप डाउन जाएगा. ओके. या इवन अगर 50 मार्क्स भी अप डाउन जाता है, सो दैट इज द वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी जो आप लेके जा रहे हैं. एंड इट डज नॉट हैपन कि आप वर्स्ट केस ही आ जाओ. सो ऑल आई एम सेइंग कि आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, आप कंप्लीट करिए सिलेबस को. एंड आफ्टर दैट अगर एग्जामिनेशन स्ट्रेस में सिली मिस्टेक्स आप कर ले रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लॉस हो जा रहा है, दैट इज ओके. आई बिलीव कि ठीक है, उससे आपको ऐसा कोई लॉस नहीं होना चाहिए कि आपका ड्रीम कॉलेज छूट जा रहा है या फिर आपका कोई पीएसयू में नहीं जा रहा है. नहीं होता है ऐसा, जनरली नहीं होता है. आपका विंडो फिक्स ही रहता है. गुड गुड. बहुत अच्छा, आपने काफी पॉजिटिविटी अपने जवाबों से दी. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अमेजिंग टिप्स टू क्रैक द गेट पेपर. नाउ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक लाइन ऐसी तुम सजेशन की देना चाहो उन एस्पिरेंट्स को जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं 2025 की. 2025 के लिए मैं देना चाहूँ कि दो एक्चुअली हैं इंपॉर्टेंट चीजें. फर्स्ट थिंग कि डू नॉट लूज होप टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन और आफ्टर द बिफोर टेकिंग द एग्जामिनेशन नेवर लूज होप. जब तक कि आप पेपर देके नहीं आ गए हैं तब तक सेकेंड. होप आपका कभी कम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है. क्योंकि देखिए, प्रिपेयर हर कोई कर रहा है. आई नो कि आजकल इतना कंपटीशन है कि यू विल सी अपने आसपास देखेंगे कि कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है. इट्स ओके okay. आप बस देखिए कि आपका सिलेबस पूरा हो रहा है कि नहीं. आपको अगर 3 घंटा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट होने का फीलिंग आ रहा है, दैट इज ओके. आपको उससे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. सो नेवर लूज होप, नेवर लूज कॉन्फिडेंस टिल यू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन. सेकेंड थिंग कि ऑलवेज टेक सेकेंड पेपर वेरी केयरफुली, क्योंकि गेट में आपको 2 पेपर अपियर करने को मिल रहा है. सो ऑलवेज टेक द सेकंड पेपर वेरी केयरफुली, क्योंकि वो आपके करियर को, उस ईयर को, इट हैज द पावर टू सेव दैट. अगर आपको फर्स्ट पेपर खराब जाता है, द सेकंड पेपर हैज द पावर टू सेव यू फ्रॉम टेकिंग अ ड्रॉप और वेस्टिंग 1 year. So these two are the basic suggestions. Wow, it's really nice and helpful suggestion for all those who are preparing for GATE 2025. Thank you, Nishant, for giving your valuable time. And once again, congratulations for securing amazing rank in 2 papers. Congratulations to you and your whole family. Thank you. Thank you so much, sir.